So this is where we are. It's a place near Chandigarh, I think quite well known. We decided to stay at Morni Hills. This is Haryana Tourism Development Corporation hotel called Mountain Quail. Well, the location and the surroundings are perfect, but of course the interiors, they look okay, but uh, so they have a good parking. It's right on the main road, but it's at the end of the road, quite at the end, and very nice location. While driving up, there was fog, lot of fog, and well, I couldn't really believe that we could see fog in this area and in this period of time. But anyways, it was really good. This is a running gallery and they have all rooms like this. So that's another part of the building. Those are also rooms. ठीक है, it's really good. And for a travel like that, this one was where we stayed was 8. Whenever I got rooms in most of my life, whether court rooms or hotel rooms or any other hostel rooms, it's been always including a number 8. I really don't know why, but it's always there. So that's, you can see my friend at a distance. She is making coffee. We will be enjoying coffee shortly. And it's a reasonably decent room, but yes, it was, they had not readied it for us. Their site was not working. Actually हरियाणा गवर्नमेंट का लगता है साइट कभी चलता ही नहीं है, तो बुकिंग वगैरह तो हुई नहीं थी. उन्होंने यही बोला कि ज़रूरत है ही नहीं बुकिंग की. देयर वर सो मेनी रूम्स लाइन, बट देन द डिसएडवांटेज वाज दैट उन्होंने कोई भी रूम रेडी नहीं करा, इसलिए रेडी नहीं था. तो देन यू कैन इमेजिन इट वाज नॉट रियली, बट आई लव द व्यूज़. दिस इज द कैन बी कॉल्ड द बैक साइड of the building, and it's beautiful. It's overlooking a valley and पूरी mountains range दिखती है यहाँ से. and इस place का चंडीगढ़ पंचकुला से सडनली ascent होता है, steep ascent है, और with the result के आप मतलब कम टाइम में काफ़ी हाइट पे पहुँच ही जाते हो, और you get a good feel, better than staying at Chandigarh or Panchkula. So we both decided कि यही ठीक है. और so I think coffee must be ready. तैयार हो गई कॉफ़ी? ओके हाँ, लास्ट थिंग्स आर नॉट रनिंग. केटल नहीं मिली हमको रूम में, अभी मंगाई तो मिली. टीवी नहीं चलता. वो कहता स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट क्या, वो बेचारा है ही नहीं, चलता ही नहीं. तो एनी वे दैट वॉज नॉट नीडेड इवन मच, सो इट वेंट वेल. ठीक है, प्लेजेंट, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, बेसिकली फर्निश्ड. ठीक था, पर वो वाइट लाइट्स थी, वो जो होती है वार्म ग्लो, वार्म वाइट, वो नहीं थी, विच आई रियली मिस्ड. मुझे वार्म वाइट लाइट्स ज़्यादा कोजी लगते हैं, और ये जो होती हैं वाइट वाली, वो थोड़ी वही गवर्नमेंट टाइप सरकारी सी याद दिलाती है, ज़रा सरकारी लुक देती है बहुत ज़्यादा, तो विच आई डोंट लाइक. कोल्ड होता है थोड़ा, एक ऑफिस टाइप लुक दे देती है, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है ट्रैवल पे सब कुछ. सो कॉफ़ी तो रेडी है,
My friend always takes black coffee and I take dark coffee. So it's good. मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीने का. कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत अच्छा है. बस हमने पैक कर दिया आज की फर्दर जर्नी के लिए. विल बी मूविंग टुवर्ड्स माय होम साइड धर्मशाला. सो आई थिंक शाम तक पहुँच जाएंगे. और फिर कल नाइट हम धर्मशाला ही होंगे. सो टुडे नाइट, टुमारो नाइट. फिर परसों मीन्स 7th our real and actual trip will start. That is with all stopovers, which I'll go on revealing as we take the halt. So we are now leaving Mountain Quail, a government hotel resort. It's good for the kind of money they're charging. It's quite good. Okay, not bad. And now we are leaving. I love the location, the view around. That is the best part of it. Actually, any government hotel, you will just notice one thing, okay, their location is always very good. It is the best in the area. They get the best of the land, best located. So that is one advantage. And yes, the rates are very reasonable. Okay, there were a few deficiencies. One can always get them rectified, but it's okay. And on a travel trip like this, one doesn't mind a few shortcomings here and there. We are prepared for all kind of adventures, misadventures. So the mindset is different. So you can see the drive down. So last evening we were coming, so it had got a little dark. There was not much point making any clips. So now I thought, so at the starting of every day, well, I must play my favorite Hanumanji. He is my third friend. My second friend being Ashkan, who is accompanying me. Well, though she doesn't drive, but well, she can be called a good guide. She's always giving the right directions. And though right now nothing is required, but at some dicey points, she would even get down. She would guide me to reverse. And she's really a good companion for a driver. She's wonderful. Here is my friend. Okay, so guys, good morning again. Here starts our day, and you can see the beauty of this place. The drive is probably as good, if not more, than the destination itself, as they say. And you can see, luckily, the weather is also favoring us. It's cloudy and it rained quite a lot, so it's all having a good look. Otherwise, I think nothing looks good without rain. Rain makes everything looks change. So there is a downward. Now we are on a descent towards Panchkula, and Panchkula se then we'll connect to the main national highway 205 to proceed onwards to Dharamshala. So here we go. एक्चुअली यहाँ तो मैं काफ़ी आई हूँ, लेकिन अब ये है कि उस टाइम खाली हरियाणा टूरिज्म का एक वो था, ये माउंटेन क्वेल और एक और होटल होता था. अभी तो काफ़ी सारे होम स्टेज हैं, बड़ी ऑप्शंस हैं, कुछ बढ़िया रिजॉर्ट्स भी हैं, बट दे आर ऑल ओवर प्राइस्ड. नाउ आई टेल यू वन थिंग, आई वांट टू शेयर दिस. I had initially done my booking to make my trip for one resort, well, I'm not naming, and
आई ऑल्सो वॉज जस्ट गोइंग थ्रू, तो यही माउंटेन क्वेल जो हमको 2000 समथिंग में मिला है पर नाइट, मेक माई ट्रिप के थ्रू और ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ऑनलाइन 8000 उसका रेट शो हो रहे थे. दिस इज रियली स्ट्रेंज. So not one, not two. Most of them were overcharging the place. जबकि ये government place है. I think government should disallow this. And for all this overpricing and all, they have their homestays और है resorts हैं, उनमें overpricing करें. Government resorts में overpricing बिल्कुल नहीं allowed नहीं होनी चाहिए. कोई भी travel agency को बैन कर देना चाहिए अगर वो इस तरह की overpricing की कोशिश करें. So they are duping people who don't know much about government accommodations and all. So I already have a fair idea. So I was quite puzzled whether it was the same mountain quail or they were talking about some other mountain quail. But no, it turned out to be the same one. So anyways, I'm happy. I just I didn't even have to book it. मुझे तो mountain quail वालों ने उनका साइट तो वर्क नहीं करता. गवर्नमेंट साइट्स वर्क वेरी पुअर एज वी ऑल नो, सम ऑफ द गवर्नमेंट साइट्स. तो मुझे कॉल करना पड़ा था और उन्होंने कॉल पे यही बताया कि यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू बुक इवन, रूम्स खाली पड़े हुए हैं, इट्स अ वेडनेसडे, यू कैन जस्ट कम वॉक इन. तो बड़ा कूल थे वो. दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल. तो वाकई में हमने बुकिंग नहीं कराई. कई बार ही लेट हो जाते हैं, माइंड चेंज हो जाता है, तो बुकिंग भी नहीं थी. दे डिडंट चार्ज अ सिंगल पैसा फ्रॉम मी. सो वॉट एवर आई पेड वॉज ऑन द स्पॉट. So it was really good that way. At least थोड़ी satisfaction होती है. और एक लंबे travel पे you want to save. You can't be throwing money around on a long trip like this. So you can enjoy the scenery on the way. But I love this place. Yes, I just thought, मैंने कहा चंडीगढ़ रहने की बजाय क्या करना सिटी से सिटी में, तो एक ये एडेड वो छोटा सा बोनस हो जाएगा, एक वो मूड भी बन जाएगा पहाड़ों का. धीरे धीरे उस सेटअप में आते जाएंगे. ऑल्दो ये पहाड़ियाँ हैं, नॉट पहाड़ एट ऑल, बट बहुत अच्छा है. इट्स वेरी गुड. बारिश की वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है. Lot of green you can see, all greenery. Actually it's not really expected, जिसको नहीं पता होता. Like I remember जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आई थी तो बहुत सरप्राइज हुआ था मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था. I remember मुझे जाना था चंडीगढ़ एक्चुअली. तो मुझे काम था बड़ा अर्जेंट, और मैं उस टाइम ऑनलाइन वगैरह थोड़ा कम था, तो सीधा मैं वो चंद्रलोक बिल्डिंग पे इनका हरियाणा टूरिज्म का ऑफिस था, वहाँ गई थी. तो तब उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा कि आप चाहते हो तो यहाँ भी रह सकते हो अगर पंचकुला में रहना है. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मॉल हिल स्टेशन. तो मैं बड़ी हैरान हुई थी. मैंने कहा हरियाणा में कहाँ से हिल स्टेशन आ गया. तो जब एक्चुअली में फिर मैं आई तो फर्स्ट टाइम तो खैर बहुत सरप्राइज हुआ था. तो जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है. और अभी तो इतनी बार आई हूँ, लेकिन तब भी मतलब जैसे ऐसे मौसम में फिर ग्रीनरी इतनी अच्छी हो रखी है कि वाकई में मतलब नया ही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है बड़ा. इट्स रियली गुड. जैसे चंडीगढ़ में कोई काम भी है, मुझे एक बार चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कुछ काम था, तो मैं यहीं रही और मैंने अपना काम करा और वापस यहीं आ गई. तो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड मोर इंटरेस्टिंग दैन स्टेइंग इन अ सिटी. क्या फ़ायदा, इतनी क्राउडेड हो चुकी चंडीगढ़ भी, अब तो पंचकुला भी भीड़ हो चुकी पूरी. तो इंडिया में तो कम जगहें बचती हैं भीड़ से. तो हम ये मोरनी पे बहुत लोग सभी जानते हैं, बड़ा कॉमन है, बट फिर भी इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स अराउंड. बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे. नए बदल जाएगा, नाम गुम
सानू सोने कोई हो नहीं लगना जो दे रूहानू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने We are passing through Nada Sahib Road. There is this Nada Sahib Gurdwara है, काफ़ी फेमस. एक्चुअली मैं तो गई नहीं वहाँ, टाइम नहीं था, बट ठीक है कभी जाएंगे. ये पंचकुला ही है सारा. So anyway. So we are now touching रूपनगर. दोपहर हो रही है, लंच हम शायद करेंगे, सोचा है. भरतगढ़ आता है, वहाँ सराय करके है. इट्स अ गुड प्लेस, बढ़िया है, खाना भी अच्छा होता है और बैठने के लिए एम्बियंस रिलैक्सिंग बड़ा बहुत अच्छा है. तो टाइमिंग भी ठीक ही रहेगा, अराउंड 3 साढ़े 3 शायद पहुँच जाएंगे, 3:15. ठीक है, चलेगा. बात करते हैं मेरे से. सो दिस इज सराय एट भरतगढ़. यहाँ हम लंच का या जो भी कुछ हल्का फुल्का लेना ले लेंगे. इट्स गुड ब्रेक. वैसे तो थोड़ा जल्दी आ ही गई ब्रेक, क्योंकि अभी तो चले थे चंडीगढ़ से ब्रेक. अब डबल माइंड में है, ले भी ये ब्रेक या ना लें, क्योंकि बहुत लेट निकले हैं. बताओ भाई, ले लो. हाँ ले लो, ले लें. ठीक है, चलो उनको बोल देंगे, जल्दी कर देंगे थोड़ा, है ना, जो भी करना है. तो ये है सराय भरतगढ़. क्यूट सा है, अच्छी जगह है, और इनके लॉन्स बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार एकदम बड़े बड़े. अभी तो थोड़ी धूप हो गई है, तो बट अदरवाइज शाम को हो, इवनिंग में मतलब, और या वेदर अच्छा हो तो फिर मज़ा आता है बाहर बैठने का. आउटडोर भी है इनका सिटिंग. इट्स गुड, बढ़िया. इट हैज़ अ कूल लुक एंड आई लाइक दैट. बेंचेस भी हैं क्यूट, जहाँ हम फोटोग्राफी बहुत कर चुके हैं. सो एनीवेज, तो ये आउटस्कर्ट्स का इनका लॉन का व्यू है. लाइक हम इंडोर बैठे हुए हैं, और ये ऐसे है इनसाइड अरेंजमेंट. और लाइक दे हैव लॉट्स ऑफ लाइक बे विंडोज़. पूरा वो बाहर का ही दिखता है, इसलिए आई मीन, क्योंकि आउटडोर्स इज़ ऑलमोस्ट इंडोर. दैट थिंग आई रियली लव. It's almost an outdoor thing. So it's very good. It gives a neat and clean appearance. अच्छा होता है इनका फूड. मैंने पहले भी ट्राई करा, बहुत अच्छा होता है, और एक फीलिंग भी अच्छी रहती है. सो इट्स अ गुड प्लेस इफ़ यू वांट टू होल्ड फॉर अ लंच. ठीक है, मतलब इट्स आई थिंक 2:30-3 आ भी गया. गुड टाइमिंग सो फॉर लंच. We have ordered 1 palak paneer and 1 veg raita. That's it. बाद में चाय देख लेंगे, मन होगा तो. So, palak paneer raita. Achar is looking very fresh. ये मेरी फ्रेंड आशकॉन. Hi. Seeing you after a long time. ये और मैं तो लॉरेल हार्डी बन चुके हैं.
बस अब हम इकट्ठे ही निकलते हैं ट्रिप्स पे, बट इट्स रियली आई एम लकी टू हैव अ गुड फ्रेंड लाइक हर। तो पहले तो मैं बिल्कुल ही सोलो, मतलब बिल्कुल ही सोलो ही जाती थी, सो नाउ इट्स गुड। पैच बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जो पूरा ओवरव्यू मिलता है ना इसमें, जैसे आने लगता है ना एकदम किरतपुर, ये ओवरव्यू बड़ा प्यारा लगता है। किरतपुर के पास पहुंच रहे हैं। किरतपुर में आनंदपुर साहब गुरुद्वारा है ना, वो अभी फेमस है, और आई हैव बीन देयर। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। और वहाँ ना मतलब रहने का भी वो है पूरा अरेंजमेंट, किसी को रहना है तो नीट एंड क्लीन रूम्स होते हैं। मैं पर्सनली तो नहीं रही, लेकिन मेरे फैमिली में कोई रहा था तो वो बता रहे थे बहुत अच्छा। माय नेफ्यू वाज टेलिंग वंस, तो अच्छा है वो। और बढ़िया है, मतलब पूरा बेल्ट सारी ग्रीन हो जाती है एटलीस्ट। चलो कहीं तो है थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन, थोड़ा लगता है कि थोड़ी सी कम है। कुछ तो ग्रीन पैचेस छोड़े हुए हैं, नहीं तो विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे पूरा मतलब इतने सुंदर सुंदर एरियाज, क्या बोले, मतलब मनाली, कुल्लू, मंडी, शिमला, सब मतलब वो हो चुके हैं पूरे बर्बाद, रूइंड। सो आई एम हैप्पी कि चलो, मतलब मेनी पीपल मस्ट बी सो हैप्पी कि कुछ पैचेस जो ग्रीन होते हैं नीचे भी, प्लेन्स में भी, तो एक रिस्पाइट मिलता है देख के, अच्छी फीलिंग आती है। नहीं तो जहाँ देखो बस पूरा पूरा वर्ल्ड एकदम बैरन लैंड्स लगती है, हेवीली कमर्शलाइज्ड। चलो गुड। ये यहाँ पे ना एक गुरुद्वारा है जो, वो भी मुझे मेरे नेफ्यू ने ही बताया था। हम रात के टाइम एक बार उधर को गए थे थोड़ा सा, तो रोड बड़ी वो है वियर्ड सी, वो उसका नाम भी ऐसे है, पातालगिरी, पातालपुरी, सॉरी हाँ पातालपुरी। तो उसकी रोड एकदम ऐसे है, मतलब एक्सप्रेसवे से हटके है एकदम, छोटी सी पतली सी रोड चली जाती है, साइड रोड, और मतलब वो है। इधर कहीं आती है पता, हाँ यही थी, इधर वो एक रेलवे लाइन आती है, उसको क्रॉस करके आता है। अचानक थोड़े क्लाउड्स वगैरह आ गए और बारिश जैसा मौसम हो गया, और यहाँ इस एरिया में तो बारिश हो भी रही है, तो अच्छा लग रहा है। जो थोड़ी सी नींद टाइप आ रही थी तो वो हट गई एकदम। लंच आवर के बाद अक्सर ऐसा होता है थोड़ा सा, बट अब ठीक है। अभी हम लोग किरतपुर वगैरह सब क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग ऊना पहुँचेंगे। तो ऊना में पहले बहुत टाइम लग जाता था, बिकॉज वो फ्लाईओवर बन रहा था और काफ़ी सालों से ही बन रहा था, पता नहीं कब से बन रहा था। तो फाइनली वो एक दिन बन ही गया और अब हम उसके ऊपर चले जाते हैं। सेव्स अस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो
तो अब वो इतना बर्डन नहीं लगता वहाँ से निकलने का। ये जो नंगल है वो सारा वो वहीं से वो सारा कट शॉर्ट हो जाता है वो पूरा एरिया। पुराने ब्रिज से अब नहीं जाना पड़ता। वो जो बिल्कुल उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इट वॉज इन अ वेरी वेरी डैमेज एंड वेरी डिलेपिडेटेड स्टेट। तो और लंबा भी बड़ा पड़ता था। बट नाउ इट्स ओके। अभी तो ये नियरिंग है, थोड़ी धूप है, थोड़ी बारिश है, तो कॉम्बिनेशन अजीब ही है। हम लोग 350 मीटर में राइट लेंगे। After 300 meters, turn right onto NH70. तो राइट लेके हम लोग मतलब नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे NH3 और ये निकल जाएगा। या तो नदौन से जा सकते हैं ज्वाला जी होते हुए, अगर ज्वाला जी किसी को जाने का है। अदरवाइज आप Take the next right onto NH70. कलोहा के बाद से आप परागपुर ले लो लेफ्ट, तो वो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। अदरवाइज ज्वाला जी से ले लो पूरा, तो अगर ज्वाला जी जाना हो तो। और ये अब हमारा स्टार्ट हो गई हिल ड्राइव टुवर्ड्स धर्मशाला। ये ऊना और ये अम्ब, दिस इज मुबारकपुर। और बस अब स्ट्रेट रोड चलती रहेगी। ठीक है, नॉट बैड। बहुत लेट भी नहीं हुए हम लोग, ठीक ठीक ही है। वैसे भी एक होता है कि जैसे मतलब घर जाना है तो इतना कोई वो नहीं होता, थोड़ा सा कि जल्दी पहुंचना है, ऐसा इतना टाइम बाउंड वो नहीं होता। हाँ, अगर कोई बुकिंग होती है, होटल में बुकिंग है या नहीं भी बुकिंग बट जा रहे हैं होटल पे या किसी और जगह पे, मतलब तब ज़रूर होता है कि चेक इन थोड़ा जल्दी करने का ही होता है मन, और ठीक भी रहता है। तो एनीवे, सो राइट नाउ वी आर रिलैक्स्ड। अभी इसमें इस रोड पे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हिल व्यू करके रेस्टोरेंट आता है, जो हम नॉर्मली जहाँ रुकते हैं। कई बारी मॉर्निंग का टाइम होता है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इवनिंग होता है टी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। तो इट्स अ गुड हॉल्ट। थोड़ा वॉशरूम वगैरह भी ठीक है, और इस साइड और तो कोई ज़्यादा दिखते नहीं। बाकी एक आध और भी खुले हैं। ये इधर PWD ये रेस्ट हाउस है, अगर किसी को स्टे करना हो। ये तो हाँ अभी मार्केट एरिया ही आ रहा है। और सो एनीवे आई थिंक गैस स्टेशन आ गया है, तो थोड़ा रिफिल भी करना है टू बी ऑन दिस थिंग। अब आने वाला मेरे ख्याल 2-3 मोड़ के बाद आ जाएगा। हिल व्यू रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी बोला, हम एक्चुअली उसको हिल व्यू बोलते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट जो है हिमसागर। सो दोनों में कंपेयर करके हिमसागर इज मच बेटर। और
फूड वाइज, टेस्ट वाइज और फैसिलिटी वाइज ठीक है, नॉट दैट गुड दिस थिंग, बट रीजनेबली ओके, जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन एरियाज में, इट्स ओके। और वो जब भी आता है तो मुझे बस यहाँ पे एक याद आता है, एक मेमोरी बहुत वो है, पर्टिकुलर प्लेस आती है तो वो रक्कड़ पुलिस स्टेशन के पास आती है, तो आई ऑलवेज गेट रिमाइंडेड ऑफ दिस थिंग। एक बिल्कुल फ्रंट हेड ऑन कोलिजन किसी ने करा था, सम यंग गर्ल एंड बॉय कपल, पता नहीं वो ड्राइव कर रहे थे अपने में और दे स्ट्रेट अवे जस्ट दे ब्रॉट देयर कार टू द रॉन्ग लेन एंड हिट माई कार। तो बड़ा फिर उसके बाद वो हो गया था इशू, माई कार गॉट, बिकॉज दे वर वेरी फास्ट, तो मेरी कार को डैमेज करा बाद में। ऑफ कोर्स एवरीथिंग दैट फॉलोज हैपेंड, अल्टीमेटली दे कंपनसेटेड एंड ऑल, काफ़ी नुकसान हुआ था गाड़ी का। सो एनीवे, बट मतलब एक छोटा सा रिमाइंडर आ जाता है इस जगह पे हमेशा, तो आई टेंड टू बी ऑलवेज ओवर केयरफुल हेयर। अब ये हिल व्यू शायद इसका इसीलिए नाम है, थोड़ा यहाँ से ये इस पर्टिकुलर हिल का ये वो होगा, टॉप होता होगा, यहाँ से फर्स्ट व्यू मिलता है एक हिली, जैसे हिल से मिलता है। तो जब जैसे वेदर क्लियर होता है तो काफ़ी माउंटेन पीक्स दिखती हैं, धौलाधर भी दिखता है। अभी जस्ट आई थिंक अनदर 1 टर्न और सो ये आ जाएगा। ऑल्दो ये सितंबर है, लेकिन अभी भी देखो 26 है इस टाइम, अभी तो 26 है, लेकिन इससे पहले 28 और बिल्कुल नीचे थोड़ा 30 था, काफ़ी गर्मी थी, एसी चलाना पड़ रहा था। अभी आई थिंक आई स्विच ऑफ द एसी, कोई ज़रूरत नहीं लग रही। ये रोड भी निकल जाती है आगे शॉर्टकट, कभी जैसे ट्रैफिक जैम होता है या कुछ है तो ये रोड भी बड़ा काम आता है। यहाँ पहाड़ों में यही मतलब एडवांटेज बहुत है कि अगर एक रूट क्लोज है तो काफ़ी रूट्स और होते हैं, अल्टीमेटली सारे रूट्स जाके मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इतना मतलब कोई इशू नहीं होता कि ट्रैफिक जैम है। वन कैन ऑलवेज टेक द ऑल्टरनेटिव रूट ज़्यादातर जगहों पे, हर जगह तो नहीं। तो ये है हिल व्यू, मतलब मेरे लेफ्ट को हिल व्यू आता है और मेरे राइट को ये है हिमसागर। तो वन कैन चूज आइदर ऑफ द टू। आई हैव ट्राइड बोथ, बट दोनों में से बेटर यही होता है, बिकॉज अब इसके आगे फिर काफ़ी कम ही हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, चाय वाय पीनी, कोई भी ब्रेक लेनी है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी, इसके आगे है लिमिटेड है थोड़ा। फिर रानीताल वगैरह आता है तो वहाँ पे होते हैं लाइन में, बट मैंने करे ही हैं ट्राई, वहाँ इवन चाय भी अच्छी नहीं मिलती है, तो कुछ खास नहीं है एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स ये वो स्पॉट है जहाँ मुझे हमेशा मैं केयरफुल हो जाती हूँ याद करते ही। इट वॉज अ रेनी डे, ड्रिजलिंग हो रही थी, मैं अपनी फ्रेंड को ही इसको ऐशकॉन को नीचे मेहतपुर से पिक करने जा रही थी। इट वॉज ड्यूरिंग द कोविड डेज एंड शी वॉज कमिंग फ्रॉम झारखंड एंड आई वॉज हेयर कमिंग फ्रॉम हेयर, तो आई पिक्ड हर अप फ्रॉम ये जो अभी हम जहाँ से आए हैं ऊना से, तो रास्ते में ही यहीं पे ही कहीं वो आ रहे थे कपल, पता नहीं अपने ध्यान में थे वो लोग और बहुत स्पीड पे आ रहे थे, पता नहीं एकदम ही दे केम एंड हिट माय कार। सो आई वाज सेव्ड, बट मेरा जो रियर डोर था राइट साइड का, मेरी साइड का रियर डोर वो डैमेज हुआ था इस गाड़ी का ही। तो बट ऑफ कोर्स वो बेचारे
कुछ लगा कि जानबूझ के नहीं करा था, बट एट द सेम टाइम मेरा लॉस तो बहुत हुआ था, तो वो कंपनसेट तो करना ज़रूरी था ही, बट और कुछ नहीं करा हमने। ये भी है वैसे, अब एक थोड़े कैफ़ेज़ खुल गए हैं और छोटे छोटे कैफ़े होते हैं। ये तो पता नहीं क्या है, अच्छा ये तो सॉरी ये तो ऐसे ही कोई वो है, क्लॉथ शॉप लग रही है छोटी सी। सो एनीवे लेट अस एंजॉय द सीनरी। अच्छा लग रहा है इस टाइम व्यू। अभी एक्चुअली क्रॉप कटा नहीं है ना बिल्कुल, तो खूब ग्रीनरी तो है। पहले अब बारिश इतनी नहीं है लेकिन ग्रीनरी काफ़ी है, तो उससे अच्छा ही लग रहा है। एंड एज द डार्कनेस इज डिसेंडिंग, so I think I will concentrate on my driving. ये हमने ना डाइवर्शन ले ली, जैसे कलोहा पहुंच रहे होते हैं तो डाइवर्शन वाला रूट ही लिया है। परागपुर एक्चुअली at one time this Pragpur road was just a so here we are reaching Dharamshala. We are coming from the Mator side, और ये डीपोलो है, यहाँ पे काफ़ी फेमस सा होटल है। और ये रोड शिला चौक को जाती है, कनेक्ट कर देती है, और मतलब इट इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव रूट्स जाने के लिए। आप गग्गल से होकर भी जा सकते हो, वो सीधा एकदम सको वाली साइड से जाएगा, बट ये सब ऑल्टरनेटिव रूट्स ही हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट रन फ्रॉम कांगड़ा से जैसे ही मुड़ते हैं तो ये मटौर वाला टर्न है, और आप जस्ट सीधे सीधे आप पहुंच जाते हो, और टेक्स लेसर टाइम। तो though we got slightly late, but still ठीक है, not a bad time to reach। बड़ा कंफर्टेबल हो गया, 23 डिग्री हो चुका है, तो अब बहुत कंफर्टेबल है, गाड़ियों के एसी वेसी की ज़रूरत नहीं। सो एसी वगैरह से छुट्टी मिल जाती है यहाँ आके, and fresh clean air totally। it's चाहे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन है, कॉमर्शियल है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन फिर भी कंपेयर करते हुए यहाँ की जो एयर है बहुत बहुत क्लीन है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो दिल्ली में आप रहते हो तो होती रहती हैं, आपकी आईज इरिटेटेड रहती है, आप खुद भी इरिटेटेड रहते हो। यहाँ पे मतलब मैं ये नोट करती हूँ हमेशा, लाइक आईज वगैरह सब मतलब बहुत बढ़िया क्लीन रहता है, एकदम सब स्ट्रेस फ्री रहता है। और ये है दाढ़ी एरिया है, और धर्मशाला हैज़ इट्स ओन ब्यूटी इन द सेंस के और हिल स्टेशंस भी हैं, लेकिन इसमें एक जो वैली का वास्ट व्यू मिल जाता है, और माउंटेन्स, वो धौलाधर रेंज वगैरह दिखती है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। एक बड़ा व्यू में बहुत खुलापन है, दिस इट्स ओपन व्यू, बड़ा वाइड एंगल व्यू है इधर हर जगह से। और कभी कभी जैसे कई लोगों को पहाड़ों में कहते हैं ना सफोकेशन होती है, कुछ है, बट यहाँ पे ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं सुना कोई बोलते हुए कि इस तरह का कोई फीलिंग हो। बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब इट हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ व्यूज़।
और स्नो भी पड़ती है वो नडी में वेयर माई हाउसेस, तो जनवरी या दिसंबर एंड में पड़ जाती है, 1-2 बार ही पड़ती है। और उससे नीचे तो रेयर होता है, एक बार ही हुआ था, मैक्लोडगंज है और इवन काफ़ी नीचे तक पड़ गई थी बर्फ़, बट नॉर्मली नहीं होता। तो नडी में बस 1 या 2 बार पड़ेगी सीज़न में। और ये यहाँ की बाज़ार है, काफ़ी बाज़ार हो गए अब तो, बहुत ज़्यादा शॉप्स और हर जगह कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया। सभी ने लाइक अपने जो घर है उनमें एडिशनल इनकम के लिए उनको उन्हीं में शॉप्स वगैरह खोल ली है। तो और घर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, यू नो, इट इज़ ऑल प्रोपोर्शनेट। आई थिंक पॉपुलेशन ग्रोज तो सभी फिर मील्स बढ़ाते हैं अपने। यहाँ पे मोस्टली लोग या तो टैक्सीज चला लेते हैं या होटल्स खोल लेते हैं, कई लोग होटल्स लीज पे ले लेते हैं टू रन देयर लाइवलीहुड, सो देन ग्रेजुअली दे एक्सपैंड और दे डोंट। सो ये राइट को मेरे ये रोड जाती है ऊपर, खन्यारा की तरफ चली जाती है। खन्यारा बहुत अच्छी सी जगह है, वो भी पूरा मतलब बहुत फैला हुआ एरिया है। कोई वैसे तो एक विलेज है खन्यारा, लेकिन बहुत बहुत वाइड एरिया है। तो इधर इतने एरियाज ऐसे हैं जहाँ मतलब बिल्कुल खुला व्यू होगा। अभी तो अगर हम लोअर लेवल पे चल रहे हैं और लाइक सिस्टमेटिक है थोड़ा। जैसे यहाँ से हम आगे जाएंगे तो सिविल लाइंस एरिया आता है सबसे पहले, वहाँ पे इनके सब ऑफिसेज हैं, डाउनटाउन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और होटल्स कम है बट ज़्यादा ऑफिसेज और गवर्नमेंट एरिया है। लॉयर्स के बहुत है वहाँ पे ऑफिसेज और उनके रेजिडेंट्स। कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उधर। तो ये लोअर लेवल पे है सारा सिविल लाइन एरिया वो कहलाता है। और अभी हम गाड़ी से पास कर रहे हैं और फिर सिविल लाइन के बाद थोड़ा सेंडिंग हो जाता है, तो मिडिल कह लो आप। और कैंट रोड होती है जो पूरी नीचे से लेके ऊपर तक रन करती है, तो दिस इज़ अ सिंगल रोड। और कैंट रोड से मतलब कैंट एरिया तो ऑब्वियसली बहुत है, तो ऑल दोस ट्रक्स आर पासिंग, तो वो रोड थोड़ी मेंटेन्ड ही रहती है ठीक से आर्मी के। और सो इट्स नॉट नोबडी कैन से कि मैंने धर्मशाला देखा हुआ है पूरा या क्या। मैंने आज तक भी इतने साल से मैं यहाँ होती हूँ, बट पूरा नहीं, मतलब इंटीरियर्स हैं, कॉलोनीज हैं, बड़े एरियाज हैं, कुछ आउटस्कर्ट्स में बहुत हैं, रिमोट विलेजेस हैं, बहुत बढ़िया सुंदर एकदम। तो मतलब हर तरह का यहाँ पे वो है। एक फोर्ट भी है, कांगड़ा फोर्ट है, बहुत हर तरह का यहाँ पे